The novel coronavirus. Watching Doctor Speak, it's a live call-in show where you can call us and ask your questions on COVID-19, and an eminent panel of experts will be joining us and will be answering those questions for you. You can also log on to DD News' Facebook page where you can post your questions on COVID-19. We'll be taking all of them up with a panel of experts. I'm Manu Bhattacharya and with me is my colleague Jyotika. शुक्रिया मुनमुन। नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि शनिवार रविवार हम आपके साथ 1 घंटे यानी कि 2 से 3 बजे जुड़ते हैं, और मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार हम आपके साथ 3:30 बजे जुड़ते हैं। तो ये समय आप जरूर याद रखिएगा। और जैसे कि मुनमुन ने बताया कि फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमें फोन कीजिए। कोविड-19 से जुड़े जो भी आपके सवाल है, आपके भ्रम है, भ्रांतियां हैं, क्वेरीज है, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे साथ पैनल ऑफ डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं, आइए उनसे आपका तारुफ कराते हैं। डॉक्टर देवाशीष चौधरी हैं, डायरेक्टर प्रोफेसर एंड एचओडी न्यूरोलॉजी, जीबी पंत हॉस्पिटल। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। डॉक्टर संदीप महाजन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स। नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर घनश्याम पंगाटे हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। सर नमस्कार, आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर देवाशीष, आपके साथ शुरुआत करते हैं। कोविड-19 से जिस तरह से लगातार जंग जारी है, जो आंकड़े आ रहे हैं लगातार, वो ये दर्शाते हैं कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया कंटिन्यूज विद इट्स रिकवरिंग स्पाइक, हाईएस्ट एवर सिंगल डे रिकॉर्ड ऑफ 73,642 इन लास्ट 24 आवर्स, मोर देन 70,000 रिकवरीज फॉर 2 days कंसेक्यूटिवली। अब तक की ये जो खबर आ रही है, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि हम अगर आगे बढ़ रहे हैं तो सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये एक्सपेक्टेड है। ये एपिडेमिक का पैटर्न ही ऐसा है कि जिसमें जैसा दिन चलता रहेगा, जैसे जैसे ये कम्युनिटी में अनलॉकिंग होती रहेगी, तो एपिडेमिक का पीक धीरे धीरे बढ़ेगा, जो कि हमने देखा कि इंडिया में केसेस पिछले 1 हफ्ते में काफी बढ़ गए थे जी। और उसके साथ साथ रिकवरी भी उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि वी नो दैट इन दिस डिजीज about 80 to 85% patients will recover of its own, I mean with minimal kind of a support. So ये expected है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि देखा गया है कि इंडिया में जनरली जो इसका प्रकोप है ये लोगों में कम है, और इंडियंस लोग इसको अच्छी तरह झेल पा रहे हैं, most of them. So I think over a period of time we'll see more rise in recovery rate. Dr. Pangti, well, there are different views that are coming to the fore now on herd immunity particularly, because there is one view that since there is a risk of reinfection, and a case was widely reported of reinfection in Hong Kong, there can be no herd immunity as far as COVID-19 is concerned, because the nature of the virus is also changing. It's mutating in such a manner that reinfection can take place, and then the question of herd immunity is not there. There's another view which has been submitted by the TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, to the BMC in Mumbai, that this herd immunity levels could be achieved sometime in December, January for Mumbai, and that is the time when 75% of the people living in slum pockets in the city would be infected, and 50% of those living in non-slum pockets can be infected. What is your view on herd immunity as far as COVID-19 is concerned? Yeah, ma'am, you are perfectly right that we are waiting for herd immunity to take care of our infection, especially COVID. So recently there has been some reports which suggested that herd immunity, which suggested that there may be some reinfection in the community, and these cases are very few. If we go with the number of reinfection cases, we have only 6 or 8 reported cases all over the world only, and we have more than 2.5 crores infection already documented. So I will say this infection is not, reinfection is not a major issue. Recently, there has been studies from Iceland where they have done a good number of patients. The infections were almost 20,000 infection they have studied, and they found that this antibody response was very good, and that lasted for at least 3 to 4 months. So we should not worry about the reinfection at present, and we should basically control the infection as such. And we expect that this general public, like you said, in Mumbai we have more than 50% positivity rate,
in slums, some area of the slums, and similarly in containment zone in Delhi, we have more than 30 to 40% positivity. So we expect once we reach this 60 or 70% of community infection, we will have some herd immunity and we will be spared from this COVID infection. राइट डॉक्टर देवाशीष, आपके पास आऊंगे अगले सवाल के साथ। कह रहे हैं कि जिस तरह से अब दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो निकल कर आ रही हैं सामने, क्योंकि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, अब तो अनलॉक हो गया, लेकिन एक किस्म का पैनिक भी अगर हम बाहर स्टेप आउट करते हैं, हर्ड इम्यूनिटी की हम बात कर रहे हैं, उस पर चर्चा हो रही है, तमाम खबरें सब तरफ से आती हैं और हर वर्ग का जो इंसान है वो इसको लेकर काफी चिंतित हो जाता है कि हम बाहर जाएं न जाएं। फिर बहुत सारी ये भ्रम भ्रांतियां फैल रही हैं कि अगर हमें एक बार कोविड हो गया है और हम सर्वाइवर हैं तो हम तो वॉरियर हो गए, हमें दोबारा नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को दिमागी तौर पर परेशान करती हैं। कैसे इनसे जूझा जाए और कैसे इनसे बचा भी जाए, खासकर अगर बुजुर्गों की बात की जाए, बड़ी उम्र दराज के लोगों की बात की जाए? जी, ये बहुत अहम प्रश्न पूछा आपने। देखिए, ऐसा है कि कोविड के साथ साथ न्यूरो साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस काफी सारे जुड़े हुए हैं। लोगों को चिंता है बीमारी से, कैसे जूझेंगे, अगर बीमारी हो जाए तो कहाँ रहेंगे, घर में, अस्पताल में, हमारा क्या होगा, अगर हमें आईसीयू में जाना पड़ा तो उसका क्या होगा, कैसे खर्चा उठाएंगे, कामकाज नहीं है, काफी लोगों का अभी धीरे धीरे कामकाज शुरू हो रहा है। तो ये सब कुछ मन में एक प्रचंड रूप से प्रभाव डालता है। They people get anxious and there is also an element जिसमें घर में रहते रहते, बंद रहते रहते लोग ऊब जाते हैं। लेकिन ये जरूर मानना पड़ेगा कि ये जो लॉक इन पीरियड था, ये लॉक इन पीरियड फिजिकल लॉकिंग पीरियड था, मेंटल लॉकिंग पीरियड का नहीं था। आप अपने जितने भी दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे बात कर सकते थे, आपका पास मोबाइल्स हैं, इंटरनेट है, और भी बहुत सारे मीन्स हैं जिसके तरह से आप संपर्क बनाए रख सकते हैं। तो ये जो फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात है, मेरे को लगता है कि काफी लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग लेकिन हमें अभी मेंटेन करके रखना है। मास्क हमें लगाना है, वो भी लोगों के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है। मैंने देखा है कि अभी काफी लोग, मैं बाजार में जाता हूँ तो देखता हूँ काफी लोग अभी मास्क लगाना छोड़ दिए हैं। ये गलत बात है। मास्क आपको लगा के रखना है। क्यों? आप पूछेंगे कि मैं एक तरफ बोल रहा हूं कि इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्फेक्टेड ज्यादा हो जाते हैं। उसका कारण यह है कि अगर एक ही समय में बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाए और उनमें से बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़े तो हेल्थ केयर के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ जाता है। तो वो नहीं हम चाहते। तो हम चाहते हैं कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, आप मास्क लगाएं और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। इसके साथ साथ कुछ केसेस में ये देखा गया है कि कोविड सिर्फ रेस्पिरेटरी इंफेक्शन नहीं करता, ये हार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, ये गट को इन्वॉल्व कर सकता है और ये ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इस तरह के बहुत केसेस आए हैं जिसमें एन्सेफेलोपैथी यानी कि ब्रेन का डिसफंक्शन या स्ट्रोक या न्यूरोमस्कुलर पैरालिसिस, इस तरह के सिम्टम्स भी आए हुए हैं। और आपको मालूम है जो सूंघने की और टेस्ट लॉस होने की जो एक लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, वो तो आजकल आज के दिन में माना जा रहा है कि वो एक कोविड के सिम्टम है और अचानक अगर ऐसे आपको हो तो आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए। इस तरह की न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट काफी सामने आ रहा है जैसे जैसे ये पैंडेमिक बढ़ रही है। सर इसमें एक चीज और पूछना चाहूंगी, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आप कैसे देखते हैं? खासकर अगर बच्चों की बात की जाए, वो चार दीवारी में बंद हैं, बाहर जा नहीं सकते, खेलने के लिए दोस्त घर नहीं आ सकते, वो किसी के घर नहीं जा सकते, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई का भी प्रेशर है, माँ बाप भी कहते हैं कि यहाँ नहीं जाना, यहाँ हाथ नहीं लगाना, हाथ धोते रहिए। तो इस तरह की आम भाषा में अक्सर ये सवाल भी आते रहते हैं। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो रहेगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में ये हमें बेसिकली इसको लाइफस्टाइल में अपना डालना पड़ेगा। और बच्चों की बात जब कह रहे हैं कि वो बाहर नहीं जा रहे, वो बात ठीक है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी दे आर नाउ गेटिंग मोर टाइम फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज दे आर स्टेइंग एट होम। सो वो भी है। मेरे पास जैसे बहुत सारे हेडेक पेशेंट्स आते हैं, उनमें एक सेक्शन तो है जिनका हेडेक बढ़ गया है ये सब टेंशन एंजाइटी के साथ, लेकिन दूसरा सेक्शन है जिनका हेडेक कम हो गया क्योंकि नाउ दे आर एबल टू इंटरैक्ट and mix up and they don't have to rush, they don't have to follow a deadline, so उससे भी फर्क पड़ रहा है। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूं कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट है और we have to understand to live with it, we have to follow the protocol, we have to follow the precautions और उसके साथ साथ हमें इसके लिए पैनिक नहीं करना है। पैनिक करेंगे तो ज्यादा टेंशन रहेगा। तो हमें ये समझना है कि ये बीमारी, इसका फेटालिटी रेट फाइनली जाके इट विल कम डाउन टू अबाउट 0.9%।
सो ये जो है ये एक बीमारी है, इसको हमें जूझना है और इसको हम रोक सकते हैं प्रोवाइडेड हम ये प्रिकॉशंस लें। तो ये हमें समझना है। जी Dr. Mahajan, now economic activities are opening up across the country, not just in Delhi, in several other cities. Urban transport, like particularly metro services, would be operational from tomorrow. It will be opened up in a graded manner. What are the precautions that people on a personal level would take? Because the authorities have themselves decided that they would only allow smart card users, and they are taking some precautions at their levels. But on an individual level, what should people do? Well, that's a very nice question, Roman, because as you have rightly pointed out, from tomorrow a lot of things are opening up which had been closed during the lockdown. Public transport is one such thing. Metro, the bus services are also planned to be resuming in a short time with full strength. You have already highlighted that the authorities by themselves are taking some initiatives. They have assured proper cleaning, disinfection of the coaches, of the buses. They are trying to avoid physical interaction to as much as possible using smart cards. But as previously talked about, it's very important that we realize the things, our duties to prevent this infection from really spiraling into a disaster. Physical social distancing, appropriate wearing of mask, frequent hand wash, use of sanitizer as and when you touch a thing which is you have not touched before or which is likely to get contaminated. Basic coughing etiquettes, basic social etiquettes. So these are the things which we now have to inculcate in our daily activity, in our daily lifestyle. And you have to realize that this disease is going to be with us for some time. It's going to get controlled over time. But we have to now formulate ways, we have to find ways to live with this disease now. And having appropriate etiquettes, appropriate culture, using social distancing, use of face masks, and frequent hand wash. I think so these are the onuses which all of us now have to undertake, especially as and when the lockdown relaxations are even increased further. Because if we don't do that, it's likely to spiral into a huge disaster. राइट डॉक्टर घनश्याम आपके पास आएंगे। एक ऑनलाइन सवाल हमारे पास आया है। राहुल मल्होत्रा पूछना चाह रहे हैं कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, उनकी वाइफ भी पॉजिटिव है, शी इज आइसोलेटेड बट माय डॉटर इज विद हर बिकॉज डॉटर डिपेंड्स ऑन हर फीड। तो क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए उनको बच्चे के लिए? व्हाट केयर फॉर चिल्ड्रन शुड बी टेकन? और आपने जिस तरह से बताया कि उनके दोनों हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव हो गए हैं और जबकि जो बच्चा है मोस्ट लाइकली बहुत छोटा होगा, 1 साल या मे बी 1 साल से भी छोटा, तो इसमें ब्रेस्ट फीडिंग तो बहुत जरूरी है। वी शुड नॉट स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग। और इसके अलावा जो माता है उनको ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि वो इवन जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो तो मास्क पहने, बच्चे को जब भी वो डील कर रही है तो मास्क पहने। बच्चे को मास्क नहीं पहनाए क्योंकि बहुत छोटा बच्चा है, वो इरिटेट हो जाएगा। और हैंड हाइजीन, जैसे कि डॉक्टर संदीप ने अभी बताया, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है और मास्क पहन के ही फीडिंग करानी है। और बच्चे को यूजुअली मदर के साथ रखा जाता है, जबकि जो हस्बैंड है ही कैन बी आइसोलेटेड इन अनदर रूम। और अगर उनको सिम्टम्स है तो मे बी वो हॉस्पिटल में भी एडमिट करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे ख्याल से इतने प्रिकॉशन काफी हैं बच्चे को ठीक से देखभाल करने। सर बच्चे को कोई खतरा नहीं है ना इन्फेक्ट होने का? ऐसा देखा गया है कि यूजुअली जो बच्चे हैं उनको बहुत ही माइल्ड डिजीज होती है और लेकिन अगर उसको बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है, बच्चा नीला पड़ रहा है, बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा है या बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है, अगर ऐसे कोई भी रेड फ्लैग साइंस नजर आते हैं तो उनको इमीडिएटली किसी पीडियाट्रिशियन या बच्चे के स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। अगर वो ठीक से फीड कर रहा है, ठीक से रो रहा है या ठीक से रिस्पॉन्स कर रहा है तो बच्चे को घर में आराम से आइसोलेट मदर के साथ किया जा सकता है। There's another question that has come in from a social media user, but we have a caller now. Shailendra is joining us on the phone line from Prayagraj. जी पूछिए अपना सवाल शैलेंद्र जी। जी शैलेंद्र जी पूछिए। जी जी मुझे मैम मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं पिछले 19 तारीख को मैंने टेस्ट करवाया था कोरोना वायरस का, तो पॉजिटिव आया था, ठीक है।
तो अभी ये 14 दिन से मेरा टोटल करीबन 18-19 दिन हो गए हैं। तो अभी क्या प्रिपरेशन रखना है, क्या फॉलो करना है? क्योंकि मैं अलग घर पे रह रहा हूँ, दूसरे घर पे रह रहा हूँ और वहीं पे खाना खुद से बनाता हूँ, खुद से सारा काम करता हूँ। तो क्या मतलब अभी कब तक मुझे होम क्वारंटाइन में आइसोलेट कब तक रहना पड़ेगा? और से जानकारी देखेंगे। डॉक्टर चौधरी, आपने अभी अगर 17-18 दिन बिता चुके हैं अकेले क्वारंटाइन में, तो आई थिंक यू आर नाउ आउट ऑफ दैट डिजीज फेज पीरियड। नॉर्मली हम 14 दिन का कहते हैं, लेकिन इसका रेंज है, काफी लोगों में थोड़ा सा ज्यादा भी चलता है, 17-18 दिन भी चल सकता है। लेकिन आपको एक रिपीट टेस्ट करा के देखना चाहिए और उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं फैमिली में, देयर इज नो प्रॉब्लम। The social media user is asking, now we are getting more than 80,000 cases each day. Shweta Srivastava asks, are we expecting a peak anytime soon, or is it going to rise further? So a lot of times people ask Dr. Mahajan on whether a peak has already come or it's likely to come. It had fell some time back that Delhi had peaked, but later there was a further increase in cases after a slight dip. The Chief Minister here says it's because of increased testing. Having said that, is a peak yet to come? Any estimate on various reports that you might have read about on a peak in India? When is that likely? Well, as far as the peak for this disease is concerned, it's still subject to so many things. You see, as academicians, as physicians, as medical personnel, we tend to depend upon so many factors to actually say as to when are we peaking. So, in our estimate, we are still to peak. We are a huge country. The areas which are not turning out to be the main positive belts are not the ones which were affected initially. So obviously the disease has traveled from the initial hotspots to the new hotspots. So this is, we are still not certain whether we have attained a peak. And as you said, cities like Delhi are experiencing a second peak, which partially is true in the sense we have been testing more. And secondly, there are so many interstate travels which have not been restricted now, which are quite open, and they can be harbingers for this so-called second peak. So unless we stabilize with a significant amount of herd immunity, it's the peak is still to come. That's all I go to. It's very difficult to hazard a guess here as to when we are going to peak for sure. Initially we were expecting somewhere in mid-August. We are beyond that period and we are still not peaked, so it's very difficult to hazard a guess. राइट डॉक्टर चौधरी, आपके पास एक सवाल के साथ आएंगे। ऑनलाइन ये पूछना चाह रहे हैं, राहुल मल्होत्रा जी हैं कि आई एम कोविड पॉजिटिव एंड माय फादर इज 65 years old. नाउ ही इज हैविंग फीवर 99 to 100. शुड वी गो फॉर हिज टेस्ट? ही इज आल्सो टेकिंग मेडिसिन फॉर डायबिटीज एंड HB है, तो आई गेस हाई ब्लड प्रेशर का होगा. इज ही कोमॉर्बिड और शुड वी एडमिट हिम टू हॉस्पिटल इमीडिएटली? नहीं, अगर आप पॉजिटिव थे और आपके पिताजी के साथ रह रहे थे तो, और पिताजी को अगर फीवर आ रहा है तो आई थिंक इट्स अ केस, स्ट्रॉन्ग केस फॉर कोविड टेस्टिंग. अभी इस समय अगर कोई भी कारण हो फीवर का, फीवर के बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं. अभी आजकल डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया इत्यादि होने का संभावना है. लेकिन अगर आप पॉजिटिव थे तो आप पिताजी अगर फेब्राइल हो गए हैं, अगर उनको फीवर आ गया है तो उनका टेस्टिंग जरूरी है. There's another question that's come in on our Facebook page. Santosh Kumar Gupta asks, what precautions to be taken in journey by train in AC coaches? Do AC coaches, are they safer for journey compared to other modes of transport? And if you could also remind our viewers about the precautions that should be taken from tomorrow, considering that metro trains are running in various cities. So let's answer for both AC trains as well as metro trains, because they too are air conditioned. Yes. So Dr. Debashish Chaudhary. Yes, I think in a closed environment, if the AC is running and if there is some person who is infected and who is in the spreading stage of the disease, then there is a risk of the virus being circulated within that confined area, and therefore there will be some risk of traveling in a closed environment. But even then, if you are taking good precautions like wearing your mask properly, and if you are hand sanitization, and as far as possible, I know that in many times it might not be possible to maintain the social distancing always in this traveling situations, but
Nevertheless, you can maintain to some extent, and if these precautions are taken, the chances are that this will not affect you. But as Dr. Sandeep said, that there is a possibility because of this intermingling. This is opening up of people and people moving from one state to another, from one place to another. They're moving in trains. All this is likely to escalate the infection rate, but it is very difficult to predict the numbers. So therefore, what we expect is that increasing trend will be there for some time, and then possibly will plateau and then will decline. जी सर, आपके पास मेट्रो से रिलेटेड एक सवाल के साथ फिर आएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। सिद्धार्थ हैं बैंगलोर से, पूछिए प्लीज अपना सवाल। Very good afternoon to you. Can you hear me now? Yes, please. we can. Okay, good afternoon. I saw day before yesterday an interview of Dr. Soumya Swaminathan on this same channel. This is an RNA virus. Correct me if I'm wrong, doctor, please. This is an RNA virus. Okay, this virus already mutated 1,200 times till today. Again, there are chances that the RNA virus very frequently gets mutated. After the vaccination, after the vaccine comes, if I get the dose of the vaccine also, how come so I am 100% sure that after I get the vaccination, I will not get infected by this virus? Because every day this virus is mutating. Second question, how long I have to stay with this pandemic? Quite a very long time, or do I have to stay with this pandemic permanently? Number third question, how long the body immunity or the antibody will be there in my body after I get COVID negative? Thank you. Okay, so 3 questions. Dr. Pangte, would you like to respond to them? The first being that if I'm vaccinated, what is the duration of protection going to be? Second, the duration of antibodies in the body post infection, or and the another one being that how long is COVID-19 here to stay? If I got him right. So vaccination first and foremost is we should be able to get a vaccine which is very effective, and that's the major question. And it's totally right that it's a RNA virus and it mutates regularly. So trials will let us know that how effective this vaccine is. In all vaccines, there are some side effects. Sometimes vaccination may cause some neurological effect also. So we will have to see next 2-3 months which is the vaccine which is comes first and which is good and effective. And the scientists use usually some common genes of these RNA or any DNA viruses. So if it is successful in trials, don't worry about the repeated mutation. Most likely they will cover those mutations also. Second question he asked was how long these antibodies may be there after a vaccination. So if there is a successful vaccine which is authorized by our government of FDA or any other country in Europe, so usually when these vaccines are given, body makes antibodies, and we have seen that it lasts at least for 4 to 6 months at least. But there are some memory cells also. There are memory B cells and memory T cells. So they can memorize the infection, they can memorize the vaccine which has been given. So don't worry about that, that even if some immune antibodies become less after some time, whenever this virus again comes to your body, they may have a repeat response and they will still be effective. So first and foremost, we are all waiting for a successful vaccine. So let's wait for that, and we will see how it goes after that. Right. I hope I have covered. Yes. डॉक्टर चौधरी आपके पास फिर आएंगे। कल से हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, मेट्रो की शुरुआत हो रही है, और मेट्रो सिर्फ दिल्ली में नहीं, आसपास के जितने भी हमारे एनसीआर के इलाके उनको भी आपस में जोड़ती है। तो जाहिर है दूसरे इलाकों से भी, अगर हरियाणा यूपी की बात की जाए, वहां से भी लोगों का आना जाना होगा। अब जब भी हम मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, आई एम श्योर आपने भी कभी मेट्रो में सफर किया होगा, अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या प्रिकॉशंस, किस तरह से मेट्रो में जो सीटिंग है या फिर स्टैंडिंग है पैसेंजर्स की, वो की जाएगी मेट्रो अथॉरिटीज की ओर से। लेकिन जब भी हम खड़े होते हैं, हम हैंडल्स को छूते हैं। अगर हम मेट्रो के प्लेटफॉर्म्स चेंज करते हैं तो हम एस्केलेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके रेलिंग को पकड़ना होता है, या और तमाम इस तरह की चीजें जहां पर हमारा कांटेक्ट होगा। तो एक सवाल जैसे कल भी हमारे पास आया था कि क्या मेट्रो में सफर के दौरान हाथों में ग्लव्स पहने जाएं, या फिर इस तरह की स्थितियों में कैसे अपने आप को बचाया जाए?
नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे हमने पहले बताया कि ये आपका एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रहेगा कि आप जब मेट्रो में आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि मैं कम से कम टच करूंगा, मैं अपने रेलिंग्स को नहीं टच करूंगा, मैं एस्केलेटर के साइड बार्स को नहीं टच करूंगा, मैं अगर मेट्रो में है तो सीट या उसके हैंडल को टच नहीं करूंगा, एक नंबर। दूसरी नंबर बात है, जब भी आप ट्रैवल करेंगे उससे पहले आप सैनिटाइजेशन करेंगे और जब निकलेंगे तब भी आप हाथ को सैनिटाइज करेंगे। आजकल पॉकेट सैनिटाइजर्स आर अवेलेबल है एंड मेनी ऑफ देम आर कमिंग क्वाइट चीप, so therefore that you have to keep while traveling because that is an important thing. Gloves per se will not be very good idea because the gloves may actually accumulate the virus, and then whenever by accident you touch your face or take it near to your nose or mouth, then actually you can contract the infection. So gloves are not indicated in this, but you have to have this mental setup. That's what I was saying, that living with the virus. Yes. Mental setup कि ये रहेगा, जैसे इससे पहले जेंटलमैन ने पूछा कि कितने दिन तक कोरोना रहेगा। अभी वो भी कोई प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता, लेकिन ये लंबे अरसे तक रहने वाला है। It is not going to go off suddenly and few months time. And even if the vaccine comes, even if we try to start immunization process, it will take a long time to immunize a large population like India. So it is going to be there for some time. So we have to make this lifestyle modifications. एक सवाल विनोद गांधी पूछ रहे हैं, उन्होंने कहा है हिंदी में ही इसका जवाब दिया जाए। What all multivitamins one should consume? क्या क्या multivitamins लोगों को खाने चाहिए? Should aged people with diabetes consume multivitamins every day and for how long? इस समय में जब कोविड इन्फेक्शन इतना फैला हुआ है तो क्या जो बुजुर्ग हैं उनको मल्टीविटामिन्स खाना चाहिए, स्पेशली वो जो डायबिटीज से पीड़ित हैं? डॉक्टर महाजन, देखिए मल्टीविटामिन्स का अगर वो सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप अच्छी हेल्दी डाइट खाते हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब इंक्लूडेड हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स या एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स लेने की जरूरत नहीं, चाहे आप डायबिटिक हैं या चाहे आप डायबिटिक नहीं। आजकल की लाइफस्टाइल में, आजकल के हिसाब से शायद हमारे खुराक में इन सब चीज़ों की कमी हो गई है, तो इसीलिए इन सब सप्लीमेंट्स का या इन सब दवाइयों का प्रचलन है। कोविड के हिसाब से कुछ मल्टीविटामिन्स या कुछ सप्लीमेंट्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिनका शुरू में था कि शायद कुछ बेनिफिशियल भी दें, खासकर विटामिन सी था। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को भी कुछ स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन की स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, तो इसलिए विटामिन सी सप्लीमेंट देना चालू किया लोगों ने। विटामिन सी की बात अच्छी है कि वो वाटर सॉल्युबल है, अगर आप ज्यादा खाएंगे तो वो पेशाब के रास्ते निकल जाएगा, बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होते, और अगर ज्यादा होते हैं तो खुद ही निकल जाते हैं शरीर से। तो उनका अगर हम कहें कि किसी तरह से कोई मेजर नुकसान नहीं है तो कुछ हद तक सच होगा। बाकी विटामिन के बारे में ये सच नहीं है, काफी बाकी विटामिन फैट सॉल्युबल हैं और बॉडी में स्टोर होते हैं, और कई बार ज्यादा विटामिन सप्लीमेंट भी आपको नुकसान दे सकते हैं। जी, तो अपनी तरफ से आप अच्छी खुराक रखें, हेल्दी डाइट रखें, आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ सप्लीमेंट्स लेने हैं तो बेहतर है किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, और बिना डॉक्टरी कंसल्टेशन के मल्टीविटामिन खाली फूड सप्लीमेंट समझ के ना लीजिए। जैसे मैंने कहा, बी और सी कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनका शायद कोई साइड इफेक्ट ना हो, वो भी शायद है, लेकिन फैट सॉल्युबल विटामिन अगर ज्यादा हैं तो शरीर को नुकसान कर सकते हैं। तो प्रॉपर डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टरी सलाह से ही इन दवाइयों का सेवन करें, वैसे नहीं। जी, बीके गोयल बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हैं। गोयल साहब, पूछिए अपना सवाल। ये न्यूज़पेपर मंगाना कितना सेफ है, ये बताइए। चलिए ठीक है, डॉक्टर घनश्याम आपके पास आएंगे। सुनो, ऐसा अभी कुछ डाटा आया हुआ है कि न्यूज़पेपर में उतना इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है, बट फिर भी क्योंकि अगर कोई रिसेंटली इन्फेक्टेड पेशेंट अगर पर्सन खासकर जैसे कि न्यूज़पेपर वाला अगर न्यूज़पेपर डाल के जाता है उसको कोविड है, तो थोड़े से चांसेस फिर भी रहते हैं कि उसने उस पेपर को कंटेमिनेट कर दिया गया हो। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर जब भी आए उसको कुछ टाइम के लिए बाहर धूप में रख दें। धूप से बहुत अच्छे जैसे यूवी रेज भी होते हैं और धूप से सैनिटाइज भी हो जाएगा। बट इफ पॉसिबल, अब जिस तरह के आजकल हमें इस कोविड के साथ रहने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, तो मे बी
ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ना बेटर रहेगा। और अगर आपके यहाँ फिर भी आपको न्यूज़पेपर की आदत है तो आप कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए न्यूज़पेपर को बाहर रख दें, उसके बाद ही यूज करें। रिस्क कम है बट फिर भी 0% नहीं है। Rahul Malhotra is asking after how many days we should go for test when I come in contact with a positive patient and if someone is having temperature. Rahul Malhotra is asking this. Dr. Mahajan, would you like to respond? Well, usually if you have an exposure with a person who is COVID positive, say he has been turned COVID positive now, so even prior to the onset of symptoms, the viral shedding starts. So ideally, if you have been exposed to that person within 5 days prior to the onset of symptoms or his detection positive, then if you have symptoms, you should be testing yourself. And usually in 5 to 8 days is the time when the symptoms start. And if you develop after the exposure, fever and all of the problems, then you can also get yourself tested. But as an asymptomatic carrier, maybe not. There is a linked question. Yes, Dr. Mahajan, there is a linked question. After how many days RT-PCR should be done after getting temperature? If one develops temperature, after how many days should RT-PCR test be done? 3 to 5 days. All right. राइट डॉक्टर चौधरी आपके पास आएंगे। राज नागपाल जी पूछना चाह रहे हैं, व्हेन वी गो टू एनी मॉल आवर टेम्परेचर इज जनरली चेक्ड बाय पुटिंग थर्मल स्कैनर ऑन आवर फोरहेड्स, कैन इट कॉज एनी हार्म टू आवर बॉडी स्पेशली दी ब्रेन्स एंड ऑल? बिकॉज ये सवाल काफी निकल कर आ रहा है कि हर बार जब भी हम कहीं स्टेप इन करते हैं, थर्मल स्कैनिंग होती है, कितना असर उस थर्मल स्कैनर का हमारे शरीर पर या दिमाग में पड़ता है? पिछली बार भी यही मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेरे ख्याल से जितनी बार आपका होता है तो बहुत ज्यादा अगर ना हो तो देयर इज नो हार्म। एज सच थर्मल स्कैनिंग डजंट कॉज एनी, बिकॉज इट इज बेसिकली डिटेक्टिंग your body temperature radiation, and so it is not going to harm you in any way. Abhijit Sonowal is asking Dr. Mahajan that he's lost his sense of smell and taste due to COVID-19. He has recovered, but he hasn't got his smell, the sense of smell or taste back. How long would it take to get that back? It's been already 15 days, he says. Well, it takes time for the recovery to happen post-COVID. Dr. Chaudhary is a neurologist, so I think so he would be more equipped to answer this question. Dr. Chaudhary? Yes. Thank you, Dr. Mahajan. There are studies now. The range is about a week to 28 days, and in some patients even about 35 to 40 days. So don't worry, you will get it back, and about 85 to 95% patients will get it back. Some people may have some slight residual deficits. There have been large-scale studies in Europe, and they have found that it is generally you recover well. So don't worry, you will get it back. राइट डॉक्टर घनश्याम आपके पास आएंगे, पूछना चाह रहे हैं कि उनका बेटा 5 दिन से बुखार आ रहा है उनके बेटे को, और अब बुखार ठीक हो गया, परंतु उसका कल कोविड टेस्ट कराया था जो पॉजिटिव आया है। सीटी स्कोर 28 करंट आया है, सीपीआर टेस्ट 5 आया है और WBC 3200 है। क्या उसे और कोई इलाज की आवश्यकता है? हिंदी में जवाब दीजिएगा। बिल्कुल। अब मुझे ये जानना भी जरूरी था कि वो बच्चा जो है मे भी बहुत छोटा है या बड़ा है, क्योंकि बच्चा तो एडल्ट भी हो सकता है और मे बी पीडियाट्रिक ग्रुप हो। बट जो सारे टेस्ट इन्होंने बताए हैं, TLC जो कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, वो भी नॉर्मल की साइड है, बहुत कम नहीं है। ऐसा देखा गया है कि जिनका की TLC में लिम्फोसाइट बहुत कम होते हैं या टोटल TLC कम होते हैं, उसमें थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है सिवियरिटी का। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उस बच्चे में जानने का कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। तो अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन मोर देन 95% है तो ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर वो बच्चा ठीक से खा रहा है, ठीक से बिहेव कर रहा है और सारी एक्टिविटीज अपनी नॉर्मल कर रहा है, डेली एक्टिविटीज खाने से लेके सारे जितने भी he is 22 years old sir, he is 22 years old. Okay, 22 is almost adult, so बड़े की तरह ही डील करेंगे। तो सैचुरेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, जनरल वेलबींग इंपॉर्टेंट रहेगी, और उसका बुखार अगर ज्यादा है तो उसको मे बी पैरास्टामोल की जरूरत पड़ेगी, मे बी एवरी 4 to 6 hours पैरास्टामोल की जरूरत पड़ सकती है। अगर सैचुरेशन कम हो और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो तो उसको अस्पताल में एडमिट कराना चाहिए। अगर नहीं है तो घर में आइसोलेट कर सकते हैं। आपने बताया अब इसको 5 दिन हो चुके हैं,
तो मे बी नॉर्मली ड्यूरेशन लगभग 14 दिन या 17 दिन के लिए हम आइसोलेट करते हैं। अगर ये वार्निंग साइन नहीं आए तो वी विल कंसीडर दैट इज अ माइल्ड डिजीज, और 17 दिन के बाद इवन बिना टेस्ट किए इसको हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं, कहें कि उसको अगला टेस्ट की जरूरत नहीं है। Dr. Chaudhary, Amit Upadhyay is asking, I'm working in a profile where I need to consistently check physical files which are simultaneously touched by other fellow team members. How safe is that, and what precautions can I take while touching these files with many number of pages, since practically it is not possible to sanitize these files? Yes, I think that that's a very important question, and there have been, instances where, big officials who are actually using a lot of files have contracted infection through their, PAs or the people who got the files, and when the files is moved to various departments. This has happened in a lot of government servants, ministers, and, people who are actually dealing with these files on a regular basis. So there is a potential danger. So what I would suggest that if you start working, then you should obviously sanitize your hand and then start using. And after every file you finish off, you again sanitize your hands. So make it a habit that every time. So I, as the head of the department, have to sign at least 40 files in a day. So what I do is that every time I start looking at a file, read it. Before that, I sanitize my hands, and then again after I complete the notings on that file, then I sanitize my hands. So this I have been doing for 3 months. डॉक्टर महाजन आपके पास आएंगे, सवाल पूछना चाह रहे हैं कि he has to travel and come back on the same day to a location approximately 70 kilometers away from his hometown Nagpur by car for urgent office work. What precautions he must take? सबसे ज्यादा जानने की जरूरत यह है कि वो अकेले जा रहे हैं या उनके साथ कोई जा रहा है। सर ऑफिस वर्क है तो होपफुली अकेले जा रहे होंगे, we can assume that. So if it's office work, then actually you're practically isolated when you are traveling in a car, so it should not be a big issue. You can even roll up the windows and start an AC. There is no problem with that. And then, as I said, once you are out of the car, you should practice social distancing and face mask and frequent sanitization of the hands and washing of the hands. सर इसके साथ ही एक जुड़ा सवाल है, अभी 2-3 दिन पहले ये सवाल आया था, अगर एक व्यक्ति अकेला कार में ट्रैवल कर रहा है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य है या नहीं है? हमारे हिसाब से अगर आप खिड़की बंद करके एसी चला के अकेले गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फेस मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई और किसी को अपने से इन्फेक्शन नहीं फैला सकते, ना ही बाहर से कोई इन्फेक्शन आके आपको आ सकती है। बट यही अगर कुछ लोग कार में हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं साथ में, तो आपको फेस मास्क पहनना चाहिए, बट अकेले कार में शायद फेस मास्क की जरूरत नहीं। There's another question that had come, and that was that if a mother is positive and has to take care of her 4-year-old child, since there's nobody else to take care of the child, can the mother be with the child, be in contact with the child or not? Dr. Chaudhary? नहीं, ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी आंसर किया है, जो मदर का ब्रेस्ट फीडिंग की बात थी, तो उसी संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि अगर ये एसेंशियल है कि मदर के बिना और कोई नहीं है देखभाल करने के लिए चाइल्ड के लिए, so the mother has to take care of the child, and that the mother will use the same precautions which we have been telling again and again, or try to minimize the actual contact with the child. जैसे आपका जब उसको अगर सपोज नहाना है तो अपने आप को वो प्रोटेक्ट करके अपना मास्क लगा के, and maybe in that situation gloves might be a good idea to kind of clean the child. But otherwise generally अगर possible है, अगर और कोई family members हैं तो then if he can be isolated, then that can be a good option, because there are chances of in despite everything इसके बावजूद भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, और बच्चों में हालांकि बहुत माइल्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में बच्चों में भी सीवियर इन्फेक्शन या पोस्ट इन्फेक्शन इफेक्ट्स दिखा गया है। इसीलिए इसको एकदम हम मामूली तरह से नहीं देख सकते, तो अगर पॉसिबल है तो दूसरे लोग देखें, अगर एकदम ही पॉसिबल नहीं है तो मदर को वो सेम प्रिकॉशंस लेके चाइल्ड को हैंडल करें। Dr. Pangte, another question has come, and Hardik Gandhi is saying that he's a government servant. Every employee is going through thermal screening while entry. Some of them might be asymptomatic and thus not showing any temperature. What is the probability that such people can spread the virus? Yeah, it's really a threat also to all the employees, and as we are going to the
unlocked down 4. So now even metro will be open, everything is getting opened up. So there's a real chance, there's a significant data is there that even asymptomatic patient can spread the infection. And to prevent those infection in your office or any public place, best thing is use your mask. And even that patient who is asymptomatic or not showing fever, he should also wear mask. If 2% are wearing mask, chances of infection goes very, very significantly low. So if everyone should wear mask, and hand sanitization or hand hygiene should be taken care of. Similarly, like Dr. Mahajan already said, cough etiquette and all should be taken care of in public, and avoid eating, avoid going in the public spaces, and avoid to remove your mask in closed spaces, especially like we have already discussed AC rail or AC metro coaches. Please avoid to remove your mask during those places, and it will certainly decrease the infection rate. Right. एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं. Yes, sir. Please go ahead. One more thing here. Please that please avoid community eating. Yes. In most of the offices, people eat together. You know, so that's again a very, very potential source. In my hospital also, this has happened, that staff nurses or the residents, they eat together and then spread the infection to each other, the asymptomatic ones. So no sharing, please. No sharing of food and tiffins. जब अगर आप काम काज पे निकले हैं. कॉलर एक हमारे साथ जुड़े हैं, हारिस है मुंबई से. जी प्लीज स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल. Yes, good afternoon, doctor. I'm Harish Mohijan from Mumbai. So I'm having a query that I'm having a very sensitive skin, even in my palms. So whenever I'm using hand sanitizer, I'm having my skin itches or peel off. So if there is any other things to sanitize, which for the persons who are having that very sensitive skins? Dr. Pangte? Okay, yeah, some people do have sensitive skin and they may have a problem with these sanitizers. So you can have alternate arrangement, like you can wear gloves. So if you wear gloves, you don't have to sanitize your hand directly. You should otherwise sanitize your gloves also, because these gloves get contaminated and you can spread infection to others, even if you don't infect to yourself. And when you wear the glove, don't touch your face and eyes, this part, face and mouth should be avoided. Second thing is, if you are allergic to alcohol content of this sanitizer, hand washing by soap is also good enough. So you try to wash your hands with normal soap, that is good enough. And if you have a specific, sometimes your sanitizer which may have some other ingredients which are used for other than this 70% alcohol. So you try to change your sanitizer, otherwise gloves or soap will help you. Right. डॉक्टर महाजन आपके पास आएंगे एक सवाल के साथ. ये पूछना चाह रहे हैं कि one of our relative has developed lung infection and had problems in breathing. All the 4 members had a spell of fever for 5-6 days. Others recovered, but he took fever medicine from a local doctor which also had antibiotics. Now COVID rapid test showed negative. He got admitted in a local hospital for past 2 days. He doesn't have fever now and body pain is also not there, but he still gets cough and goes out of breath when talks or does physical movement or even sitting while sitting. What should he do? The symptoms which he is saying, which he is basically presenting with, is fever, cough and breathlessness, even on minimal exertion. So they would fit into with COVID in spite of the test being negative. Even RT-PCR can be negative 15 to 20% times, even though the person has infection. If we are looking at rapid antigen testing, they can be negative even 30 or 35% times, in spite of having infection. So it's better to get the patient tested again. Treat him as COVID unless proven otherwise. So that would be my advice. With the current pandemic which is going on, he should, with this symptomatology and this history, he should be treated as COVID unless proven otherwise. Chest X-rays at times can be quite diagnostic and helpful in diagnosing COVID, but definitive diagnosis can only be by RT-PCR test. And if one is negative and still clinical suspicion is high, it's better to repeat the test. There's another question which he's asking, is there a need to get advanced COVID test done? RT-PCR showed negative, but he's still having breathing issues.
Yeah, as I said, there is no more advanced test other than the RT-PCR as far as the COVID is concerned. You can go and get the RT-PCR done again. As so many times we have seen in our ward that the patient has one RT-PCR COVID report negative, but we are still very suspicious of the infection. We repeat it after 3 days and they come back as positive, because at times the viral load is not much and the shedding is intermittent. You don't always shed the virus. So since the shedding is intermittent, the viral load is not much, you might get a RT-PCR report which is negative. The other contributory test would be obviously a chest X-ray, which I said is suggestive of COVID in quite a few scenarios, but it's not diagnostic. Right. But whatever it is, he should be treated as COVID unless proven. जी डॉक्टर चौधरी आपके पास आएंगे। इस सवाल को हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने शो के दौरान। मेड के वर्क करके जाने के बाद कितनी देर तक मास्क पहने रखना चाहिए? हम जब तक वो काम घर पे करती हैं मास्क पहने रखते हैं और वो भी पहने रहती हैं। हालांकि हमने इस पे काफी चर्चा की है कि लॉकडाउन ने हमें बड़ा कुछ सिखाया, हम खुद अपने कामकाज करने सीख गए, लेकिन क्योंकि अब 6-7 महीने हो गए हैं तो अब परेशानी थोड़ी सी बढ़ने लग गई है। ये डिपेंड करेगा कि आपका हाउस का स्ट्रक्चर कैसा है। ये क्लोज्ड जैसे एक फ्लैट टाइप का है या बंगलो टाइप का है जहां पर आप अपने दरवाजे और खिड़कियां खुला रख सकते हैं। प्रेफरेबल अगर आप दरवाजे खिड़कियां खुला रख के काम कराएंगे तो बेहतर है। एयर के फ्लो के साथ साथ वायरस अगर थोड़ा शेड भी हो रहा है किसी कारणवश तो वो निकल जाएगा, उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन अगर क्लोज एनवायरनमेंट है, क्लोज फ्लैट है, तो उसमें आपको कुछ देर तक मास्क पहनना ठीक रहेगा। एंड आई वुड से दैट पीरियड वुड बी टू द ट्यून ऑफ अबाउट हाफ एन आवर टू 1 आवर, बट द चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन इफ बोथ द पार्टीज आर वेयरिंग द मास्क इज वेरी लेस। सो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मास्क तो पहना है लेकिन कैसे पहने हैं। अगर मैंने देखा है काफी समय जैसे हमारे यहाँ भी काम करते हैं मास्क नाक के नीचे बांधते हैं, तो उसका फायदा नहीं है। यू हैव टू एंश्योर दैट द मास्क इज प्रॉपर्ली ओन्ड, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आप दरवाजे और खिड़कियां खोल सकते हैं तो आप खोलिए, खोल के रखिए। दैट इज बेसिकली द बेस्ट वे टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन बिकॉज द एयर फ्लो विल wipe away the virus. जी Another question has come in, Dr. Chaudhary. Neha Dharod is asking, अगर स्मेल और टेस्ट कम हो गई है लेकिन बुखार या वीकनेस बिल्कुल नहीं है तो घर पर रह के क्या इलाज कर सकते हैं? बुखार कम हो गई है और स्मेल एंड टेस्ट ठीक नहीं हुआ है अभी तक। जी उन्होंने कहा है स्मेल और टेस्ट कम हो गया है, अच्छा, लेकिन बुखार और वीकनेस नहीं है। ठीक है, फिर घर में रह सकते हैं आप। जो स्मेल एंड टेस्ट का जो प्रॉब्लम होता है वो इसलिए होता है कि वायरस नाक के यहाँ पर हमारे ओल्फैक्टरी सेंसरी ऑर्गन्स है जिससे हम सूंघते हैं, उसमें जाके अटैक करता है और उसको थोड़ा टेम्पोरली डिसफंक्शनल बना देता है, काम नहीं करता वो, तो वो धीरे धीरे रिकवर करता है। यूजुअली अगर आपको बुखार नहीं है, आपके पास ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है और बॉडीली कोई सिम्टम्स नहीं है, आपका कोई कहीं पर परसिस्टेंट बॉडी एक, हेडेक, सोचने में, थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ अगर आपको सूंघने की दिक्कत थोड़ी बहुत जारी है तो भी आप घर में रख के अपना इलाज कर सकते हैं। जी डॉक्टर घनश्याम आपके पास आएंगे सवाल के साथ। चांदनी गुप्ता है, ये पूछना चाहिए कि ट्रेन में यात्रा करने के लिए क्या क्या सावधानी लेनी होगी? क्या यात्रा करने से पहले कोविड-19 टेस्ट करवाकर प्रमाण पत्र के साथ यात्रा करना जरूरी है या फिर स्टेशन पर होने वाले थर्मल स्क्रीनिंग से काम चल जाएगा? बिल्कुल मैडम, आपने जो एक सवाल किया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से अनलॉकडाउन बढ़ता जा रहा है अब हमारा ट्रेवल भी बढ़ेगा। हर स्टेट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर किसी स्टेट में आप घूमने जाते हैं जैसे कि हमारे नॉर्थ से उत्तराखंड या इधर, तो उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही चलें। अगर उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है कि आपको कोविड RT-PCR टेस्ट दिखाना है तो आप जरूर कराइए। रिसेंटली ICMR ने आपको सभी को अलाउ कर दिया है कि ऑन डिमांड RT-PCR टेस्ट या कोविड टेस्ट अलाउड है, तो आप ये टेस्ट उसके हिसाब से करा के जाइए। लेकिन आपको प्रिकॉशन सारे वही रखने हैं। अपने 2 गज की दूरी रखें, डिस्टेंस रखें, आप अपने हैंड हाइजीन रखें, कफ एटिकेट्स रखें और तभी बाहर जाएं जब बिल्कुल आवश्यक हो। तो अभी भी मैं कहूँगा कि जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि क्या हमारा पीक आ गया है, मैं ये कहूँगा हम लोग पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने शुरू से बहुत ही फ्लैटन द कर्व करके हमने बिल्कुल फ्लैट कर दिया था इन्फेक्शन रेट, बट अब ये धीरे धीरे आज कल की जो हमारे काउंट से 90 लाख पॉजिटिव आए हैं और ये धीरे धीरे मोस्ट likely 1 लाख के क्रॉस कर जाएंगे अगले 1 हफ्ते में। तो अभी हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं हुए हैं
अभी सबसे क्रिटिकल पीरियड है कि हमें लॉकडाउन की तरह अपने पूरे व्यवस्था को खोलना भी है और अपने को सेफ भी रखना है। जबकि हम इनिशियल 2-3 महीने में हम कह रहे थे स्टे होम स्टे सेफ, अब ऐसा नहीं है। स्टे होम का टाइम चला गया है। अब बहुत सारे लोगों को बाहर अपना व्यापार देखना होगा, अपना पूरा जॉब भी देखना है। तो अब हमें बाहर भी जाना है, लेकिन तभी जाएं जब आवश्यक है और अपना पूरा ख्याल रखें। तो जो ख्याल है वो हम अभी पिछले आधे घंटे से वही डिस्कस कर रहे थे। और टेस्ट तभी कराएं जब आवश्यक हो और जब रिक्वायरमेंट हो, उस स्टेट के हिसाब से चलें, न कि आप अपने आप कराएं। जी डॉक्टर चौधरी, आपने पहले जवाब दिया था कि सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल कम हो गया है लेकिन बुखार नहीं है, तो क्या घर पर इलाज कर सकते हैं? अब वही पूछ रही हैं कि क्या इलाज करना चाहिए, क्या स्टीम लेनी चाहिए या कोई मेडिसिन लेना चाहिए? घर उनका खुला है, वो कह रहे हैं। नहीं, अगर सेंस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल है उसके लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। वो अपने आप वायरस जैसे शरीर से निकल जाएगा और बॉडी अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू करेगी, तो वो धीरे धीरे रिकवर होगी। तो अगर आपको लेकिन नेजल कंजेशन हो रहा है, जैसे नाक बंद है, या आपको लग रहा है कि मेरा साइनस ब्लॉक्ड है, या मेरे को सर में दर्द हो रहा है, तो आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, वो काफी समय इस एयर पैसेज को क्लियर कर देती है। और बाहर के इधर उधर की दवाई लेना उचित नहीं होगा। और अगर आपके सिम्टम्स जारी रहे तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए। जी डॉक्टर महाजन, आपके पास आएंगे। हम डिस्कस कर रहे थे कि डायबिटिक पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी लो है किसी वजह से, और खासकर और जनरली अब कोविड के इस वक्त में जब लोग मल्टीविटामिन्स ले रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा मल्टीविटामिन्स लेने से क्या हमारे बॉडी के फिल्टर्स, किडनीज या इन पर कहीं ना कहीं ज्यादा इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर हम जरूरत से ज्यादा ये चीजें ग्रहण करते हैं? बिल्कुल जी, तो मैंने पहले भी बताया था कि सारी दवाइयां हम कहते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। जो भी चीज हम खा रहे हैं उसे ना किसी रास्ते बाहर निकलना है, खासकर अगर उसकी मात्रा हमारी जरूरत से ज्यादा है। कुछ चीजें आसान है जो किडनीज के रास्ते, यूरिन के रास्ते निकल जाती हैं, जैसे मैंने कहा विटामिन बी और विटामिन सी। तो इनकी टॉक्सिसिटी या इनकी बॉडी में एक्यूमुलेशन या इनका में जमा होना नहीं होता, तो इनके ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं आते। बट कई विटामिन हैं, जैसे विटामिन डी आजकल काफी लोग ले रहे हैं, उसके काफी फायदे भी हैं। लेकिन अगर यही विटामिन डी ज्यादा हो जाए तो वो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा जरूरत से ज्यादा कर सकता है, जो आगे जाके नुकसान कर सकती है। विटामिन ए आगे से स्किन में परेशानी कर सकता है। तो जितने जो विटामिन हैं जिन्हें हम अच्छा समझते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के, सारे के सारे अच्छे हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ही। अगर ये उनकी मात्रा ज्यादा हो जाए, बॉडी में जितनी उनको ग्रहण करने की कैपेसिटी है, जितनी मात्रा बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है, रख सकती है, उससे ज्यादा इनकी कैपेसिटी हो जाए, तो फिर ये आगे जाकर नुकसान देते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, ये सोच के कि ये मल्टीविटामिन है और इनका कोई नुकसान नहीं है, ऐसी पद्धति से ना चले। बेहतर है किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर या किसी डॉक्टर की सलाह पे ही मल्टीविटामिन लीजिए, क्योंकि हर दवाई का अपना साइड इफेक्ट या अपना इफेक्ट आता है। Dr. Pangte, Mukesh Kumar Roy is asking, and before we take that question, there's a caller who's joined us. OP Sharma has called us. जी शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मुझे कुछ पिछले 1-1.5 महीने से प्रॉब्लम चल रही थी मेरे स्टमक में, तो मैं मेडिसिन वगैरह डॉक्टर को चेकअप करा के लिया, तो अब तो ठीक हूँ। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे जो है मुंह में 2-3 बार ये प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो जो है होती है कि मैं जैसे कुछ भी खाता हूँ तो बड़ा तेज लगती है, जैसे खाना या नींबू भी मुझे बहुत तेज लगता है। तो मुझे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए इसके लिए? जी आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर पांगते, आपने अगर सवाल सुना हो तो आप जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो आपको सिम्टम्स हो रहे हैं वो कोविड से रिलेटेड तो नहीं है। जिस तरह से आपने बोला कि 1-1.5 महीने से आपको कुछ पेट की तकलीफ थी और उसके बाद से आप थोड़ा शायद आपके मुंह में या तो कुछ छाले हो गए हैं या आपका टेस्ट सेंसेशन थोड़ा सा बढ़ गया है। टेस्ट भी नहीं मैं कहूँगा, आपने बोला कि जलन ज्यादा हो रही है। तो मेरे हिसाब से क्या आपको कुछ कब्ज की शिकायत हो या इंटेस्टाइन में कुछ थोड़ा सा सूजन ऐसी कोई तकलीफ हो, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप किसी अच्छे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाएं और वही आपको शायद कुछ दवाई दे पाएं, और मे बी सिंपल एंटासिड से आपका इलाज हो पाएगा।
जी डॉक्टर चौधरी आपके पास आएंगे, थोड़ा रैपिड फायर सवाल ले लेते हैं, वक्त एकदम खत्म हो रहा है, थोड़ा आप फटाफट आंसर अगर दे दे तो बड़ा शुक्रिया होगा आपका। पूछना चाह रहे हैं, आफ्टर टेस्टेड पॉजिटिव शुड आई गो फॉर एंटीबॉडी टेस्ट एंड इफ यस देन फॉर हाउ मेनी मंथ्स एंटीबॉडी विल एग्जिस्ट इन आवर बॉडी? And second question, what if someone has got a running nose with temperature 99.6 but it goes off in a day? Is it required to go for a COVID test? First question, no, that you don't need to do the antibody test after being positive, RT-PCR positive. The immunity in the Iceland study, which is recently published about 2 days back, has shown that the immunity lasts for about 6 months or so, 4 to 6 months at least. So you will not worry that once you have got the infection, you will probably have sufficient antibody. And the second question was, can you remind me please? What if someone has got a running nose with temperature 99.6? So running nose with temperature is a very common symptom of all viral infections. So until and unless you are having other symptoms, it is unlikely to be COVID. But in the pandemic time, it will not be a bad idea to at least get tested, because you might be a minimally symptomatic person and you can still be potentially spreading to your near ones and dear ones. चलिए आखिरी सवाल जी आखिरी सवाल डॉक्टर महाजन आपसे, जल्दी जल्दी, डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड कोविड-19 एंड टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन देम? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, काफी पेशेंट्स कोविड के बिना किसी सिम्टम्स के भी रहते हैं, और जैसे डॉक्टर चौधरी ने बताया, अगर आपको एक दिन का बुखार हल्का भी है विद सिम्टम्स ऑफ यूआरआई जैसे रनिंग नोज है, सोर थ्रोट है, इवन दैट कैन बी कोविड। सो पेंडेमिक में डिपेंडिंग आपकी क्या एक्सपोजर है और आप कितनों को आगे एक्सपोज कर सकते हैं, आपको अपने से ज्यादा बाकियों का ध्यान भी रखना है। तो बेहतर है कि अपना टेस्ट करवा लें ताकि आप अपनी तरफ से इन्फेक्शन किसी और को ना करें। और अगर आपको पहले किसी से एक्सपोजर हो चुका है तो डेफिनेटली कोविड ही समझ के अपने आप को। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों डॉक्टर्स का, डॉक्टर देवाशीष चौधरी, डॉक्टर संदीप महाजन, डॉक्टर घनश्याम, आप हमारे साथ जुड़े, आपने जल्दी जल्दी आंसर्स भी दे दिया। हालांकि डॉक्टर से कभी जल्दी जल्दी सवाल करने नहीं चाहिए, जवाब नहीं लेने चाहिए, लेकिन बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करते हैं अपने दर्शकों के हर सवाल को आप तक पहुंचा दे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ अपना समय बांटा, धन्यवाद। धन्यवाद। And thank you to the viewers as well for calling us and asking questions, and to all those who logged on to our Facebook page and asked your questions as well. If any questions were left unanswered, you can join us again tomorrow. We'll be live between 2 to 3 p.m. tomorrow in Dr. Speak once कल again. मुनमुन हम 3:30 जुड़ेंगे, कल सोमवार है, कल सोमवार से शुक्रवार 3:30 बजे हमारे साथ जुड़िएगा, शनिवार रविवार 2 से 3 हमारे साथ जुड़िएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।